हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स विद अविक। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। द नेम ऑफ द टॉपिक विच आई हैव गिवन आई विल शॉर्टली रिवील, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू so much for your overwhelming response in my Instagram handle, that you're really looking forward to my weekly videos and you are finding my videos useful for your day-to-day corporate life, be it you are seeking a job or you are struggling in a corporate world. So this gives me an enormous encouragement to do more videos and keep watching Cubicle Talks with Avik. So the name of the video which I've given for today's topic is, why are you getting rejected for jobs you are already qualified for? ये बहुत ज़्यादा पेन पॉइंट है सभी जनक, मतलब फॉर एवरी वन, बिकॉज दे कम बैक टू मी एंड आस्क मी दैट व्हाट इज द रीज़न आई वॉज परफेक्टली क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब एंड आई थॉट आई एम द परफेक्ट मैच, बट फिर भी आई वॉज रिजेक्टेड. सो व्हाट इज द रीज़न? So based out of my experience and based on the experience from others, I've gathered some information, and hence I've put all the parameters and all the points, and I'm trying to make it a very short video so that you find this video useful and you are prepared for your next round of interview. So keep watching Cubicle Talks with Avik and let's start. बहुत बार ये होता है कि after giving an interview, you are 100% confident that you will get this job. Or, before giving an interview, whenever you read the job description, you find that the job description is perfectly matching with your experience. But still, there is no response from the recruiter, there is no response from the company side, or from the consultancy side that your candidature has been shortlisted. तो क्यों होता है? नंबर 1 पॉइंट्स, हम लोग 5-6 पॉइंट्स इसके ऊपर चर्चा करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, यू मे नॉट बी द गुड फिट as per the hiring manager. The hiring manager might be looking for someone with an additional skill or maybe some additional points. क्या क्या पॉइंट्स होता है इसके ऊपर मैं बताऊंगा अभी. फॉर एग्जाम्पल, you are very good in Excel, no doubt. Okay, your profile says you are very good in Excel, but in your resume you have written that your PowerPoint skills are average. So the hiring manager would think that Excel में तो अच्छा है, but what if I give him or her a presentation, a PPT to do it? He or she will struggle. So ये छोटा छोटा चीज़ है ना, which matters a lot in terms of deciding whether a candidate is fit for that role or not, जिसको हम फिटमेंट बताते हैं. सेकेंड पॉइंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करते, द लोकेशन वे यू आर रिसाइडिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर वर्क प्लेस is in Bangalore's Whitefield. अगर you're about to give an interview or you're seeking a job for a company who's based out of Whitefield, and you are residing in maybe the other part of the Bangalore, maybe towards the airport. Okay, so the hiring manager will he will be in a dilemma, he or she will be in a dilemma that whether to even go ahead with this candidate or not, because ये तो बहुत दूर रहता है, इसको अगर हायर भी कर लेंगे तो स्ट्रगल करेगा, because we don't have company cabs for the normal times. 9 to 6 के बीच में company cabs होता ही नहीं है. So even before the hiring manager takes the interview, he makes up his mind that इसको रिजेक्ट करो भाई, क्योंकि ये बहुत दूर रहता है, ये आना जाना नहीं कर पाएगा, ओवर टाइम नहीं कर पाएगा, आना जाना नहीं कर पाएगा, तो बहुत स्ट्रगल होगा. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न विच इज़ लीस्ट डिस्कस्ड इन टुडेज जॉब इंटरव्यू सिनेरियो, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से. द थर्ड फैक्टर कैन बी maybe you are very good at your job. Okay, your job description 100% matches with
what you have been doing on or what you are doing in a current company. Okay, everything matches 100 out of 100, but you have frequently changed your job. ये कोई बुरी बात नहीं है, चेंजिंग योर जॉब इज़ नॉट एट ऑल अ सिन आई वुड से, बट कोई मैनेजर्स ऐसा होता है, they work for a company for decades and decades and decades, okay, for 10 years, 8 years, 12 years. उनका mindset ऐसे ही हो जाता है that if that candidate has jumped companies means every 2 or 3 years, that means the candidate is not good. तो एक परसेप्शन बना लेता है, जो गलत परसेप्शन है. क्या सही है क्या गलत है मैं इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे नहीं आज, बट मैं whatever I am saying, these are the factors. I am just discussing the factors based on which a candidate gets rejected in spite of having a perfect qualification and perfect experience. तो ये एक फैक्टर होता है. नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट. हायरिंग मैनेजर्स ऐसा होता है ना, दे लुक फॉर अ परफेक्ट कैंडिडेट, मतलब फ्लॉलेस कैंडिडेट. भाई दुनिया में फ्लॉलेस कैंडिडेट कभी भी नहीं मिलेगा. देन हायर अ रोबोट जो आपके लिए आंख बंद करके मुंह बंद करके काम करेगा. सो बहुत मैनेजर थोड़ा बहुत उनका स्क्रू ढीला होता है, sorry to say, but they look for candidates who are perfect. तो ये चीज़ है, they in spite of looking for candidates who are closely whose candidature is closely matching with whatever expectation he has, but instead of that the hiring manager looks for candidate who's perfect with unrealistic expectation. मतलब 10 साल भी नौकरी किया हुआ, मतलब his tenuity should be good, his work experience should be good, he should get promotions every 2-3 years. That proves that he is a very good candidate. भाई 10 साल अगर एक कंपनी में काम कर रहे हो, and every year if that candidate is getting hike, or every year if the candidate is getting promoted, why the hell he should or she should leave the job? No, right? तो कभी कभार ये थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है विद द रिक्रूटर्स दैट लुक बस यू आर लुकिंग फॉर एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. ऐसा कैंडिडेट आपको मिलेगा नहीं. बहुत होता है, मतलब बहुत ऐसा मैनेजर्स आपको मिलेंगे. सो पागलपंथी है. तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच ड्यू टू विच मे बी योर कैंडिडेचर गेट्स रिजेक्टेड, बिकॉज परफेक्ट मैच कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता दुनिया में. द थर्ड थिंग, they already have a candidate in mind. मतलब just for the sake of doing an interview they conduct an interview because वो formality है. बस को उसके दिमाग में कैंडिडेट है, भाई इसने तो इसको रेफ़र किया था, उसको लेंगे. पर चल ठीक है, ये जॉब रिक्वेजिशन क्लोज करना है तो इंटरव्यू लेके ख़त्म कर, रिजेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, और पाइपलाइन में डाल दे. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. द फोर्थ फैक्टर इज़ फेक जॉब पोस्टिंग. बहुत स्टार्टअप्स होता है, बहुत ऐसा कंपनीज होता है हु आर डाउनफॉलिंग, जिसका टर्नओवर एकदम मतलब क्लोज टू ज़ीरो है, एंड देयर एट्रिशन रेट इज़ हाई बिकॉज द कंपनी कल्चर इज़ नॉट गुड, दे आर नॉट डूइंग वेल इन द कंपनी, एंड कैंडिडेट्स आर एंड द एम्प्लॉयज़ आर मूविंग आउट ऑफ दैट कंपनी. दे पोस्ट अ फेक जॉब in the portals just to make the candidates active in their candidate hiring pipeline. वो लोग सोचते हैं कि भाई अभी फ्यूचर में तो कभी भी तो मतलब मुझे ये इन्वेस्टमेंट आई कैन फोरसी एन इन्वेस्टमेंट बाय दिस इन्वेस्टर, सो मुझे शायद हायरिंग करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट क्वार्टर, सो आई शुड टेक एन इंटरव्यू एंड गेट द कैंडिडेट्स एटलीस्ट इन द हायरिंग पाइपलाइन. वो होता है, बहुत बार ये चीज़ होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रियलिटी. द फोर्थ थिंग, द नेक्स्ट फिफ्थ थिंग आई वुड से इज बैड टाइमिंग्स. बैड टाइमिंग्स क्या होता है? मे बी यू आर वेरी गुड, योर रेज्यूमे, योर एक्सपीरियंस, everything looks perfect, but you have applied for that job after maybe 25 perfect candidates have applied. आप शायद देखे नहीं होंगे, आप अप्लाई कर, आप थोड़ा देर कर दिए, एंड दे हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड अ कैंडिडेट, बट स्टिल द इंटरव्यू प्रोसेस इज गोइंग ऑन,
and just for the sake of taking an interview they take an interview, but they have already selected a candidate. मतलब just for the closure of the job requisition they are taking the interview. So ये factor होता है wherein you assume that you know you got rejected because maybe आप में कुछ आपने कुछ गलती किया होगा इंटरव्यू में और आपका कुछ खामियां रह गया होगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन द इंटरव्यू. इट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यूअर्स परसेप्शन कि आपका एक्सपीरियंस वो कैसे देख रहा है. गलत सही आता है बहुत बार जहाँ पे एकदम ब्लैक एंड वाइट थिंग्स होता है, बट मेजरली क्या होता है, इट्स द इंटरव्यूज़ परसेप्शन अबाउट यू. एक दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है इंटरव्यूअर बिफोर इंटरव्यू कि ऐसा कैंडिडेट होगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा बोलेगा. अगर इस इधर से उधर भी हो गया ना, दे विल टेंड टू रिजेक्ट. तो होता है, दिस इज रियलिटी गाइस. ओके. द सिक्स्थ थिंग इज दे हैव ऑलरेडी हायर्ड समवन एंड रिक्रूटर्स को खबर ही नहीं है कि दे हैव हायर्ड समवन. बहुत रिक्रूटर्स ऐसा होता है कि दे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू और शेड्यूलिंग एन इंटरव्यू दे विल शेड्यूल द इंटरव्यू. ओके. बट बाद में उन लोग को रियलाइज़ होगा, अरे आपने तो मुझे बताया नहीं. कभी कभी ये मैनेजर्स का भी गलती होता है, आपने तो मुझे बताया नहीं कि आपने कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है. चलो कोई नहीं, मैं इसका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया था, अभी इसको रिजेक्ट कर देता हूँ. तो आप सोचोगे भाई क्या हो गया, मेरे एक्सपीरियंस में क्या कुछ खामियां रहेगा क्या, बिकॉज आई गॉट रिजेक्टेड. तो बहुत बार होता है, बट दिस इज़ रियलिटी अगेन. ओके. दिस हैपन्स. देयर इज़ अ मिसकम्युनिकेशन, अ क्लियर मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द hiring manager and the recruiter. The last and most important thing, your resume. बहुत बार your experience is flawless. Okay, your work ethics is flawless. You are the perfect candidate. You have everything for the interview. You have all the qualifications. You have all the attributes which the interviewer is looking for. But you have an average resume. भाई आपको टाइम नहीं मिला रेज्यूमे ठीक से बनाने का. कुछ कीवर्ड्स है मिसिंग हो जाता है. मे बी आपका रेज्यूमे उतना कुछ फॉर्मेटिंग का कुछ गलती था, कुछ तो मतलब रेज्यूमे इज नॉट दैट परफेक्ट. हेंस द रिक्रूटर रिजेक्टेड योर रेज्यूमे. प्लीज रिमेंबर योर रेज्यूमे इज योर प्राइस लिस्ट, आई वुड से. दुकान में जब माल रहता है ना, द प्रोडक्ट्स रहता है, दे हैव अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. ओके. सो सेम थिंग, योर एक्सपीरियंस, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर क्वालिफिकेशन शुड बी अ स्टोरी टेलिंग फैक्टर इन योर रेज्यूमे. बहुत लोग होता है कि रेज्यूमे में 2-3 पॉइंट्स लिख के, इनकम्प्लीट पॉइंट्स लिख के छोड़ देते हैं बिकॉज उनको टाइम नहीं मिला. उनको रेज्यूमे बनाने का टाइम ही नहीं है, बिकॉज वो इतना काम में उलझे हुए हैं ना, रेज्यूमे बनाने का टाइम है ही नहीं. माई सजेशन इज दैट प्लीज, देर आर सेवरल AI बेस्ड रेज्यूमे बिल्डर्स नाउअडेज, पेड और अनपेड. आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, बट प्लीज यूटिलाइज देम. these resume builders are perfect. आप 3-4 रेज्यूमे बना के देखो. दैट्स माई सजेशन. यार 10 साल 12 साल पहले ये सब था नहीं, मैनुअली करना पड़ता था, बट अभी सब कुछ AI में आ गया. तो प्लीज़ यूटिलाइज द ऑनलाइन रेज्यूमे बिल्डर. दैट विल इमेंसली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ यू गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. सो आज का वीडियो आप होप आपको सही लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट मंडे. टिल देन, गुड बाय. Don't take tension, be stress free, just phase of your life. अगर कंपनी में कुछ, अगर मैनेजर के साथ कुछ हो रहा है तो जस्ट अ फेज, निकल जाएगा. काम डाउन. एंड तब भी अगर आपको सहन नहीं हो रहा है, देन look forward to switch your company. But that's not the end of the story. There is no guarantee that you will get a perfect manager or a perfect workplace in your next venture. So keep your ears, eyes, everything open, and I'll see you soon.